ओके। वैसे ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग कर रहे हैं उसको भी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि क्या होगा ना कि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्योरी अप्लाई नहीं करोगे ना, तब तक वो क्लियर नहीं हो पाता है। और फिर काफ़ी दिन के बाद करोगे तो थ्योरी जो पढ़ाई गई है वो भूल भी जाओगे। तो ये जो कनेक्शन है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस यस, फिर मैं कर लूंगा आज। लेट अस वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन। आई होप दे आर ज्वाइनिंग सून। ऑनलाइन में क्या होता है ना कि you generally people get too much relaxed, that is why it is 4-6 and others are not joined एक्चुअली। अगर यस जाना होता है तो वो पहले से प्रिपेयर होकर वो माइंड में रहता है कि भाई वहाँ पहुँच जाना है। लेकिन ऑनलाइन में तो चलो कभी भी लॉग इन कर सकते हैं, तो पीपल यस सर। स्टार्ट डिलेइंग। So the topic for today is trigonometric equations. I'm still waiting for others to join.
Divansh is there. Okay. Ashish and Devansh. Let us wait for 2-4 minutes more. Others will also join soon. The Kostub is also there. So Ashish is there, Devansh is there, Kostub is there. Okay. So now I think I should start because it is already 4:12 and others may join in some time as they are saying that there is some power cut issue at their places. They are from the same place. Ayushi has joined. Okay. So let us start now. Ayushi is also there, Ashish, Devansh, and Kaustubh is there. So we can start. 4 students have joined. Arushi, yes, she is also joining. Let me add with her. Okay. Okay, so today's topic is trigonometric equations. Am I audible to everyone? It is clear to everyone what am I saying? Yes, hello. Am I audible? Yes, sir. Okay. So today's topic is trigonometric equations. In trigonometric equations, basically, equations means equal to. So there is a left hand side and there is a right hand side. Now trigonometric equations means where trigonometric functions are involved. For example, if it is said that sine of theta is equal to half. So this is a trigonometric equation. So what is the value of theta? Now this is the question. So the value of theta can be pi by 6, which means 30 degree. You call pi by 6 or you can say 30 degree. Similarly, there are many other angles which you can take for theta. Not only 30 degree. 30 degree is the first angle which comes in our mind, but it is not necessary that it is only 30 degree. Because if you see the graph of sine theta is a periodic function, right? Periodic means it repeats itself. So when you draw the graph of sine, it is something like this. Okay, this goes to plus infinity, and on left hand side it goes to minus infinity.
So if you take a value which is half, suppose you take this value which is half, maximum value is 1. So the value half comes at this point, which is pi by 6. But not only this angle, you will also get an angle here. This is actually 180 degree minus 30 degree, which is 150 degree. In terms of radians, it is 5 pi by 6. Then you may get more angles. Infinite angles are possible. You may get here also, here also. If you go to the left part, you may get angles at these points also. So it is not necessary that only one angle theta pi by 6 give you sine theta equal to half. There are many other angles also. Okay. So uh, there is some definition which is being given about the angles that I will tell you now. So basically, you may get other angles like 5 pi by 6. Theta could be 5 pi by 6. Or if you see this angle, this particular angle, this is 2 pi plus pi by 6. This angle is 2 pi plus pi by 6, which is actually 13 pi by 6. एक रोटेशन पूरा कंप्लीट हो गया 2 पाई का, और उसके बाद पाई बाई 6 उसमें हमने ऐड कर दिया, जैसे 0 में ऐड किया हुआ था पाई बाई 6, वैसे ही 2 पाई में पाई बाई 6 ऐड हो गया. तो इस तरीके से तुम्हें बहुत सारे एंगल्स मिल सकते हैं. यू कैन गेट इनफाइनाइट एंगल्स. माइनस में भी बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे. जैसे तुम इस एंगल की अगर बात करो तो दिस इज एक्चुअली minus 210 degree, which is minus 7 pi by 6. माइनस 7 पाई बाई 6 का जब साइन निकालेंगे ना, मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ. साइन ऑफ माइनस 7 पाई बाई 6, तो क्या होगा, साइन माइनस एक्स का माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन 7 पाई बाई 6 हो जाएगा ये. और साइन 7 पाई बाई 6 को तुम लिख सकते हो पाई प्लस पाई बाई 6. और अलाइड एंगल के रूल से साइन पाई प्लस एनी एंगल इज एक्चुअली माइनस साइन पाई बाई 6, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव हो जाता है. और साइन विल रिमेन साइन बिकॉज इट इज एन इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. साइन पाई बाई 6 हो जाएगा फाइनली. दोनों माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाएंगे, विच इज एक्चुअली हाफ. तो माइनस 7 पाई बाई 6 भी एक एंगल है जिसका अगर तुम साइन लेते हो तो दैट विल कम आउट टू बी हाफ. तो माइनस में भी बहुत सारे एंगल मिलेंगे. तो इन सब एंगल्स को, चाहे साइन में एंगल मिल रहे हो या कॉस में मिल रहे हो या टैन में मिल रहे हो या कॉट में, कॉसेक में, सेक में, उन सब एंगल्स को हम क्लासिफाई करते हैं. तो हाउ डू वी क्लासिफाई देम, आई विल टेल यू जस्ट नाउ. फर्स्ट राइट दिस डाउन. So basically, three terms you have to remember. One of them you will study in class 12th in detail, but I will tell you in class 11th right now also. One term is principal solution. Another term is principal solutions. ठीक है, ये दोनों अलग चीजें होती हैं. सॉल्यूशंस लिखा होगा तो कुछ अलग होगा, सॉल्यूशन लिखा होगा तो कुछ अलग होगा. और एक होता है जनरल सॉल्यूशन. तो इन सब में क्या फर्क होता है, जैसे साइन के केस में मैं तुम्हें अगर बताऊं
एग्जाम्पल लेकर ही बताता हूँ, फिर थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ की बात की जाए अगर, तो इसमें तो थीटा इज इक्वल टू हाफ वाला मैं केस ले रहा हूँ। इस पर्टिकुलर केस में प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6, राइट। साइन 30 डिग्री इज हाफ। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे होगा थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 यू कैन टेक, एंड 5 pi by 6 you can take. Why we are doing this, I will explain it right now. जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, इसका मैं अभी प्रूफ बताऊंगा, तो वो होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n पाई बाई 6। तो ये कैसे हो, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो होता है वो उन सब एंगल्स को हम कहते हैं जो एंगल 0 टू 2 पाई में पाए जाते हैं। 0 इंक्लूडेड, 2 पाई इज नॉट इंक्लूडेड। मतलब एक पूरा रोटेशन 360 डिग्री का हो जाए, उसमें थीटा की वैल्यू क्या है वो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस देता है। तो दो वैल्यू, एक थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 है और एक थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 6 है, राइट। 0 से 2 पाई में अगर हम 0 से 2 पाई वाला रीजन देखें ना इस ग्राफ में, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन, ये 2 पाई है। तो एक पूरा जो रोटेशन हुआ उसमें कौन कौन सा एंगल हाफ दे रहा है, साइन थीटा हाफ दे रहा है, वो है पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो होता है वो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और उसका मतलब ये होता है कि 0 टू 2 पाई इस बीच में जो भी एंगल मिलेगा उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है ये देख लेते हैं। So what happened that principal solution for different trigonometric functions lie in different interval. Why is it so? That we will study in class 12th. But I will just give you the result of principal solution. In case if it is used in class 11th, then you know this. वैसे क्लास 11th में जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस दिया हुआ है और जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो क्लास 12th में दिया हुआ है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। यस सर। Yes, sir. सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो एक ही एंगल होता है। जैसे साइन की बात करें, यहाँ पे हमने साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के लिए सब कुछ देखा है ना। तो अगर हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि फॉर साइन the angle from minus pi by 2 to pi by 2, that is actually principal solution region, उसी में से हमें एंगल ढूंढना है। if we talk about cos, why is it so, we are not discussing right now because this is a class 12th inverse trigonometric topic, so we'll see this in class 12. For cos it is 0 to pi. For tan it is between minus pi by 2 to pi by 2, where minus pi by 2 and pi by 2 are of course not included because tan is not defined at minus pi by 2 and pi by 2. Then we have cosec. Principal solution of cosec is of course minus pi by 2 to pi by 2, same as that of sine, but you have to reject one angle which is 0 because cosec 0 is undefined, because sine 0 is 0, so its reciprocal cosec 0 is undefined, इसलिए 0 को हमने हटा दिया, ये माइनस दिया हुआ है, it means कि 0 एंगल हम नहीं ले रहे। If we talk about sec, sec is from 0 to
पाई एक्सेप्ट पाई बाई टू। 90 डिग्री पे सेक डिफाइन नहीं होता है क्योंकि कॉस 90 डिग्री पे जीरो होता है, तो उसका रेसिप्रोकल सेक जो हो गया वो 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता है। एक रह गया कॉट, तो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। कॉट का जो प्रिंसिपल वैल्यू रीजन होता है या प्रिंसिपल सॉल्यूशन जिस इंटरवल में देखा जाता है वो होता है 0 to पाई, 0 एंड पाई आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशन की सबकी रेंज। जैसे तुमसे पूछा जाए कि tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 कब होगा, तो इफ यू सी द ग्राफ ऑफ tan, इफ यू रिमेंबर दैट ग्राफ, ये सब याद रखना है, हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर रखा है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया है, गुड। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सब हम लोग कर रहे हैं। तो ये इसी तरीके से इसका ग्राफ आगे भी चलता है पीछे भी चलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो जो tan का प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही हमें कहीं पे ढूंढना है। तो -π/2 कहाँ पर है, दिस अनडिफाइंड लाइन इज -π/2 एंड दिस इज +π/2। तो इस रीजन में tan थीटा अगर 1 होता है कहीं पे यहां पर होगा, तो दैट पर्टिकुलर एंगल इज π/4 because tan of π/4 is equal to 1. So here हम क्या कहेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू अगर इसका पूछा जाए कि व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल वैल्यू या प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सो वी विल से दैट प्रिंसिपल वैल्यू इज थीटा इज इक्वल टू π/4 विच इज 45 डिग्री, अगर डिग्री में बात की जाए तो। अच्छा, अगर प्रिंसिपल वैल्यूज बोला जाए या प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बोला जाए तो 0 और 2 पाई के बीच में होता है सबके लिए। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर भी लिखा है ना 0 to 2 पाई, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो होगा वो इसी इंटरवल में होगा। तो 0 से 2 पाई का अगर हम देखें तो इस ग्राफ का एक थोड़ा सा पोर्शन और यहाँ पे बना देते हैं। एक मिनट रुक जाओ। अब बना लेते हैं ये पोर्शन। तो व्हाट यू कैन सी हियर that this is π/2, this is pi, this point is 3 π/2 and this point is 2 pi. So basically from 0 to 2 pi, if you find out the angles, one angle is of course π/4, another angle is, if you go further here, so this angle is actually pi plus π/4. Okay, 180 degree plus 45 degree, so this is actually 5 π/4. So principal solutions, if you see, it is theta is equal to π/4 comma 5 π/4. तो दो तुम्हें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होता है, जैसे एक्सट्रीम वैल्यू है ना 1 साइन थीटा के लिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 π/2 पे होगा, तो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी π/2 होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस भी बस π/2 होगा। Okay, sir. So as we can see here, this is how we can decide principal value and principal solutions. Now general solution के लिए हमें कुछ फॉर्मूले डिराइव करने होंगे। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये साइन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन। इन जनरल हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है और उसको हम लोग डिराइव करेंगे अभी। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से समझ के नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट मत लो, फिलहाल स्क्रीनशॉट मत लो, अभी इसको अच्छे से समझ के नोट करो, क्योंकि जब लिखोगे तो याद भी होता जाएगा, समझ में भी आता जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने से याद भी नहीं होगा, समझ में भी नहीं आ रहा होगा। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, this is actually principal solution of different trigonometric functions. These are all
प्रिंसिपल सॉल्यूशन, या कह सकते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन रीजन। एक दो एग्जाम्पल अभी और लेंगे जिससे प्रिंसिपल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशन पे जाएंगे। नोट कर लेना तो बता देना। कौस्तुभ हैज लेफ्ट, लगता है वहाँ पे कुछ उसको इंटरनेट इश्यू आ रहा होगा मे बी। आयुषी, आराध्या, आरुषि, आशीष एंड देवांश आर देयर। कौस्तुभ हैज लेफ्ट, ओके। तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग अभी और लेंगे। आई होप सबने लिख लिया होगा ये। इस बार मैं ऐसा क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ और ये पूछता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू, लेट अस टेक -√3/2, ओके, -√3/2, फाइंड इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये जो सॉल्यूशंस है ना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो सॉल्यूशन है वो अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वो 12th में तुम पढ़ोगे, लेकिन कई बार 11th में भी कई बार यूज हो जाता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ग्राफ याद होना चाहिए, ग्राफ से काफी हेल्प मिल जाता है। अगर मैं तुम्हें ग्राफ यहाँ पे बना के दिखाऊं तो साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे चलता है। साइन मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। सो जो -√3/2 वैल्यू है वो ऑरिजिन के नीचे है, ऑफ कोर्स, क्योंकि माइनस में है ना। तो तुम्हें ग्राफ से थोड़ा आइडिया लगेगा कि कौन कौन सा एंगल हो सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए और कौन सा एंगल हो सकता है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है वो तुम्हें पता करना है।
हर जगह का नहीं पता करना है, बस उस रीजन में पता करना है जिसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाई करता है, और फिर उस रीजन में पता करना है जिसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लाई करता है। तो साइन के केस में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाला रीजन होता है वो ये होता है, यहाँ लेफ्ट में मैंने लिखा हुआ है ना, -π/2 to π/2। तो इस रीजन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इज -π/2 and this is π/2। बता सकते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? नो आइडिया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2 के लिए थीटा इज इक्वल टू -π/3 होगा, -60 डिग्री। -π/3 का मतलब क्या हो गया? -60 डिग्री, क्योंकि साइन ऑफ -60 डिग्री जो होता है वो -sin60 डिग्री होता है, विच इज -√3/2। तो -π/3 इज इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो यहाँ पर तुम मार्क कर सकते हो। आई होप तुम समझ जाओगे। यहाँ पर ये जो यहाँ पे कट किया ना, ये जो एंगल मिलेगा -π/2 से π/2 के बीच में, ये एंगल एक्चुअली -π/3 है। दिस एंगल इज, आर यू गेटिंग इट? यस सर। ओके गुड। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो होता है वो 0 से 2π के बीच में होता है। तो 0 से 2π, 0 तो हमें दिख रहा है ये वाला है, और 2π हमें दिख रहा है ये वाला है। तो 0 से 2π के बीच में प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो होंगे हमारे पास, वो एक तुम देख सकते हो कि यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो ये वाला जो एंगल है ये लिख सकते हो पाई प्लस π/3, ठीक है। दैट विल गिव यू -sin π/3 -√3/2। ये सब ग्राफ को समझ के याद करके और प्रैक्टिस से ही आएगा। और इस वाले को कह सकते हो 2π - π, दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो 4π/3 ये बन गया विच इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बन गया 5π/3 विच इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। So it is 4π/3 and 5π/3. The principal solutions are 4π/3 एंड 5π/3। एक थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू मिलेगी और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू मिलेगी। दीज टू वैल्यूज यू विल गेट। ब्रेसेस लगाना है क्योंकि इंटरवल नहीं है, बस दो वैल्यूज है।
हम लोग जनरल सॉल्यूशन पे आते हैं। तो आई होप काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को लेके। इज इट ओके यस फॉर सर। एवरीवन? ओके, तो अब हम जनरल सॉल्यूशन पे आते हैं। तो जिस तरीके से प्रिंसिपल सॉल्यूशन का रीजन सबका अलग होता है, साइन का रीजन अलग होगा, कॉस होगा तो उसको इस रीजन में देखोगे 0 से पाई, साइन होगा तो -π/2 से π/2 में देखोगे, टैन होगा तो -π/2 से π/2 में देखोगे। इसी तरीके से बाकी सबका प्रिंसिपल वैल्यू रीजन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन रीजन अलग होता है, हम उसी में उनको ढूंढते हैं। और बाकी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो होता है वो 0 से 2 पाई में होता है। कई बार प्रिंसिपल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस का एंगल मैच भी कर सकता है एक एंगल, जैसे पिछले वाले केस में sin थीटा इज इक्वल टू हाफ में π/6 मैच कर गया था। कई बार मैच नहीं भी कर सकता है, जैसे यहाँ पर sin थीटा -√3/2 में जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है दैट इज -π/3 और जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है दैट इज डिफरेंट, दो और अलग वैल्यूज है। तो हमें मेन थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, रीजन सबके क्लियर होने चाहिए, जब जैसा होगा वैसा आंसर निकल के आ जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन तुम अभी एससीईआरटी में करोगे इस एक्सरसाइज के, या एग्जाम्पलर से करोगे या किसी और बुक से भी करोगे, रेफरेंस बुक यूज कर रहे होगे, आर डी शर्मा वगैरह, ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा भी है और जो नॉर्मल आर डी शर्मा है उसको भी यूज कर सकते हो। तो यू शुड फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑल थ्री। ठीक है, बस एक को निकालने के लिए अगर कह भी रहा है तो तुम एक मत निकालो, तीनों निकालो, तो इससे तुम्हारे लिए कंसेप्ट क्लियर होगा। अब जनरल सॉल्यूशन का जो डेरिवेशन है वो तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल से पहले दिखाता हूँ, फिर उसके बाद इन जनरल बता दूंगा। तो जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, ठीक है, इसको हम विदाउट एनी एरर साइन ऑफ π/6 भी लिख सकते हैं। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ का मतलब है कि इट इज साइन π/6। तो इसका मतलब क्या हो गया कि थीटा इज इक्वल टू π/6, बट नॉट ओनली दीज वैल्यूज, देयर आर मेनी अदर वैल्यूज, जैसे मैंने बताया था 5π/6 -7π/6, फिर हो गया था 2π + π/6 13π/6, ऐसे करके इन्फानाइट वैल्यूज है। ठीक है, एक ही वैल्यू नहीं है। लेकिन हम जो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो पहले देख लेते हैं कि साइन π/6 तो होगा ही होगा साइन थीटा जो है। तो थीटा जो होगा, अब क्या होगा जनरल सॉल्यूशन इसका क्या होगा, तो मैं एक ये यहाँ पर साइन थीटा को अगर मान लूँ कि दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है, जैसे अल्फा यहाँ पे क्या हो गया π/6 हो गया, दिस इज अल्फा। तो थीटा अल्फा के टर्म्स में क्या क्या हो सकता है, दैट इज द क्वेश्चन। तो व्हाट विल हैपन दैट वी विल प्रूव दैट, ठीक है। इन जनरल जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, वो हमें प्रूव करना है। जो जनरल फाइनल आएगा वो ये आएगा, थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1 टू द पावर n अल्फा, ये जनरल सॉल्यूशन आएगा। लेकिन कैसे आया वो प्रूफ करेंगे, और फिर इस जनरल सॉल्यूशन से हम ये सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n बिलोंगिंग टू इंटीजर्स होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर है, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन सी माइनस साइन डी, उसका फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन सी माइनस d/2 इंटू कॉस सी प्लस d/2, दिस इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हमें मिल रहा है, हमें दो चीज मिल रही है, 2 तो उधर जाके 0 बन जाएगा, या तो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 है, या फिर कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 है। दोनों में से कोई एक भी 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा। कैलकुलेशन क्लियर है यहाँ तक? यस, आई वांट रिस्पॉन्ड फ्रॉम एवरीवन। सर एक बार फिर से बता दीजिए। क्या कौन सा स्टेप बताना है, बताओ। सर जो भी बताया था दोबारा से बता दीजिए। ये जो है ना साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा को हमने इवेल्युएट करने की कोशिश की है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक फॉर्मूला पढ़ा था आशीष,
तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, नहीं तो क्या होगा ना कि आगे की चीज फिर नहीं लिंक कर पाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइन सी माइनस साइन डी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था 2 साइन सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू। बस यही फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे। यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा दिया। इज इट ओके? यस सर। तो अभी हम लोग फाइनल रिजल्ट पे आए नहीं हैं। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अभी हम उसको करेंगे। जहां तक हम लोग आए हैं वहां से हमें दो चीज दिख रही है। एक चीज तो ये दिख रही है कि साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू जो है या तो ये जीरो होगा, दूसरा हमें दिख रहा है कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू या तो ये जीरो होगा। तो जब साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू को जीरो लेते हैं हम, तो इसकी वैल्यू जीरो कहाँ पे मिलती है? तो एक्चुअली इफ यू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ साइन, यहाँ पे मैं छोटा सा जगह पे बना रहा हूँ साइन का ग्राफ, क्योंकि कई बार बना लिया हम लोगों ने, तब तक तो याद हो गया होगा। साइन का ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है। और इफ यू ऑब्जर्व कि ये जीरो कहाँ पे हो रहा है, इफ यू ऑब्जर्व दैट वेयर इट इज इट बिकमिंग जीरो, तो एक तो जीरो पे भी जीरो हो रहा है, फिर पाई पे हो रहा है, फिर 2 पाई पे हो रहा है, फिर 3 पाई पे हो रहा है, इस तरीके से माइनस पाई पे हो रहा है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर साइन एक्स जीरो है तो ये एक्स की जो जनरल वैल्यू है एन पाई, वेयर एन बिलोंगिंग टू इंटीजर, वहां पे साइन एक्स जीरो होता है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई। तो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई टू अगर जीरो है तो वो कहाँ पे जीरो हो सकता है? वो हो सकता है जब थीटा माइनस अल्फा बाई टू जो हो वो एन पाई हो, वेयर एन बिलोंगिंग टू इंटीजर। जिससे हम ये लिख सकते हैं कि थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर ऑफ कोर्स। तो ये जो तुम्हारे पास आ गया, ये अभी इस वाले फर्स्ट केस से आया। देयर आर टू केसेस, दिस इज द फर्स्ट केस। दूसरा ये पॉसिबिलिटी भी है, एंड फ्रॉम दिस पॉसिबिलिटी व्हाट वी कैन राइट इज कि cos थीटा प्लस अल्फा बाई टू जीरो है। तो यहाँ पर cos कब जीरो होता है? तो इफ यू रिमेंबर द ग्राफ ऑफ cos, ग्राफ ऑफ cos हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। साइन की तरह ही होता है, बस 90 डिग्री से शिफ्टेड होता है। तो ये जीरो होता है पाई बाई टू पे, देन 3 पाई बाई टू पे, देन 5 पाई बाई टू पे, इस तरीके से, या माइनस पाई बाई टू पे। तो इसको हम कह सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। इफ देयर इज समवेयर गिवन कि cos x इज इक्वल टू जीरो, तो ये सब चीज याद भी करते रहना है साथ साथ में। तो x क्या हो जाएगा? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, दैट इज 2m प्लस 1 पाई बाई टू। यहाँ पे मैं m यूज कर रहा हूँ, m बिलोंग टू इंटीजर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो cos थीटा प्लस अल्फा बाई टू अगर जीरो हो रहा है, इट मीन्स कि थीटा प्लस अल्फा बाई टू जो होगा वो होगा 2m प्लस 1 पाई बाई टू, और ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं। तो इससे थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। अब दो वैल्यू थीटा की पॉसिबल है, एक तो वैल्यू 2n पाई प्लस अल्फा, दूसरी है 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। अब दोनों को मुझे मर्ज करके एक रिजल्ट लिखना है, तो वो मैं कैसे लिखूंगा वो अभी बताता हूँ, लेकिन काफी कुछ इस बोर्ड में लिखा हुआ है, वो तुम्हें नोट कर लेना है। तो जस्ट प्लीज नोट देम ऑल, और मेरी तरह कुछ इधर कोने में कुछ उधर कोने में मत लिखना, सबको तरीके से राइट में, जहाँ जहाँ पे हमने जो जो रिजल्ट यूज किया उसको राइट में एक कॉलम बना के लिखना। जैसे साइन एक्स इक्वल टू जीरो का रिजल्ट यूज किया है, फिर हमने यहाँ पर cos x इज इक्वल टू जीरो का रिजल्ट यूज किया है।
यहाँ पर लिखना फ्रॉम 1, यहाँ पे लिखना फ्रॉम 2। अब फाइनल मुझे दोनों को मिला के एक फाइनल रिजल्ट देना है। किन दोनों को मिला के? ये जो बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, ये और एक ये। तो वो अभी मैं रिजल्ट देता हूँ, पहले इतना नोट कर लो। हो जाएगा तो बता देना, और अगर कोई चीज कहीं पे कोई स्टेप अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो वो भी पूछ लेना। आई होप सबने लिख लिया होगा। कौस्तुभ, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हारा बहुत मिस हो जाता है, बीच बीच में चले जाओगे तो कैसे काम चलेगा? ऐसे छोड़ छोड़ के समझ में तो आएगा नहीं ना, सारा कुछ लिंक्ड होता है। कौस्तुभ कहाँ चले गए थे? रिस्पॉन्स करो। बड़ा दिक्कत है, ऐसे कैसे काम चलेगा? रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हो, इतना देर तक कहाँ थे? चलो एनीवेज, सो नाउ आई एम कमिंग टू, ये रिजल्ट तुमने लिख लिया होगा, ठीक है? तो थीटा इज इक्वल टू या तो 2n पाई प्लस अल्फा होगा, या फिर 2m प्लस 1 पाई माइनस अल्फा होगा, ठीक है? वेर m एज वेल एज n बिलोंग टू इंटीजर। तो इन दोनों को एक साथ हम कैसे मर्ज कर सकते हैं वो जरा ध्यान देना। थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर तुम अगर देखो ध्यान से, तो 2n मतलब इट इज एन इवन नंबर, 2n है। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो दिस इज एन ऑड नंबर।
तो हम या तो ऑड ले सकते हैं या इवन ले सकते हैं। अगर इवन होगा तो यहाँ पर प्लस साइन है, और अगर ऑड होगा तो यहाँ पर माइनस साइन है। तो दोनों इवन नंबर भी ले सकते हैं, ऑड नंबर भी ले सकते हैं। तो मान सकते हैं कि सपोज n पाई ले लें, तो दिस n कुड बी इवन कुड बी ऑड। लेकिन पॉइंट ये है कि जब इवन होगा तो यहाँ पे प्लस साइन होना चाहिए, और जब ऑड होगा तो यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए। तो ये दोनों को एक साथ कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? विल राइट प्लस -1 टू द पावर n। तो क्या होगा, n अगर इवन हो जाएगा तो माइनस पे 1 पे इवन पावर 1 दे देगा, तो प्लस साइन रहेगा। और अगर n ऑड हो जाता है तो -1 पे पावर ऑड जो होगा माइनस साइन देगा, तो माइनस बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों को एक तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल रिजल्ट जो हम एक एक बार में लिख सकते हैं, वेर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। आर यू गेटिंग इट? यस सर। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो देखा था, ये है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। तो जैसे अभी हमने देखा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो जिसको हम लिख सकते थे साइन ऑफ π/6। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6 हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट हमने देखा, इसको यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया। अल्फा की जगह π/6 है, तो इससे हमें सारे एंगल्स मिल जाएंगे, इन्फानाइट एंगल्स सारे के सारे जो उसका जनरल सॉल्यूशन हो सकता है वो सारे मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल n को अगर तुम 0 लेते हो, n को अगर 0 लोगे तो थीटा जो होगा π/6 हो जाएगा। n को अगर 1 लोगे और उसमें पुट करोगे तो पाई माइनस π/6, थीटा जो हो जाएगा 5π/6 हो जाएगा। जैसे ही n को 2 लोगे तो जो थीटा होगा वो 7π/6 हो जाएगा। सॉरी नॉट 7, 13π/6। n को पुट करते जाओ उस फॉर्मूले में एंड यू विल गेट मेनी एंगल्स जो कि उसका जनरल सॉल्यूशन होंगे। तो ये 13π/6 हो जाएगा। इस तरीके से n कोई भी इंटीजर हो सकता है। n को अगर निगेटिव भी चाहो तो पुट कर सकते हो, n इज इक्वल टू -1 अगर लेते हो तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू -7π/6। तो ये सब कुछ जो हमें ग्राफ से दिख रहे थे वो इसके जनरल सॉल्यूशन में भी n की अलग अलग इंटीग्रल वैल्यूज पता करने से मिल जाएंगे। Is this clear to everyone? General solution for sin theta is equal to sin alpha. Yes, I want the response from everyone. Sir. Okay, Arushi. Okay, the mic is not working. तो अब हम आते हैं जनरल सॉल्यूशन कॉस का कैसे निकलेगा, फिर टैन का कैसे निकलेगा। तो अगर हम इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है।
साइन का जनरल सॉल्यूशन हमें मिल गया, मान लो कॉस का पूछा जाए तो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉस ऑफ अल्फा है तो थीटा क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज इट्स जनरल सॉल्यूशन, कैन यू ट्राई वंस, इसका रिजल्ट ट्राई कर सकते हो, कैसे प्रूव करेंगे? सो एज यू कैन सी हियर कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है और हमें थीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो व्हाट यू कैन डू इन द नेक्स्ट स्टेप, राइट cos थीटा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 0। ये कौन सी आइडेंटिटी हो जाएगी, cos c माइनस cos d, एंड डू यू रिमेंबर व्हाट दैट आइडेंटिटी वाज, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ये सब याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, मतलब थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। इससे हमें क्या मिलेगा, तो -2 जो है वो तो उधर जाके 0 को डिवाइड करेगा और 0 ही देगा। बाकी जो बचा साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2, या तो ये 0 हो सकता है या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 ये 0 हो सकता है। और साइन एक्स कब 0 होता है ये हमने अभी देखा था, साइन एक्स 0 कब होता है, जब एक्स की वैल्यू n पाई हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, ग्राफ बना के देखा था ना अभी। तो यहाँ पे साइन ऑफ दिस इज 0 कब होगा, जब दिस इज इक्वल टू n पाई, और यहाँ पर ये 0 कब होगा, जब दिस इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से क्या मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से दोनों को अगर हम मिला देते हैं और कंबाइंड रिजल्ट लिखना चाहें, इसको और इसको कंबाइंड करके एक रिजल्ट लिखना चाहें, तो ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनली थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। सो दिस इज द फाइनल result, that is the general solution of cos theta is equal to cos alpha। यस सर। ओके आरुषि, माइक ठीक हो गया तुम्हारा? यस सर, मैंने दोबारा ज्वाइन किया तो। ओके ठीक है। व्हाट इज द फाइनल आंसर, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा।
अच्छा, अब ये जब हो गया तो अब तीसरा जो जनरल सॉल्यूशन है वो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का है। तो आई एम इरेजिंग सब पार्ट एट द टॉप। tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का तुम्हें निकालना है। जस्ट ट्राई, देन वी विल डिस्कस। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू व्हाट? इन सब का जनरल सॉल्यूशन थोड़ा सा तुम सोचोगे ना, ग्राफ वगैरह के को मिलाते हुए, ग्राफ अगर क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा, तो उससे तुम मिलाओगे जब इसकी जनरल सॉल्यूशन को, तो बहुत कुछ तुम्हें समझने को मिलेगा। तो इट इज वेरी मच लिंक्ड विद द ग्राफिकल पोर्शन। तो जो भी एनालिटिकल पोर्शन हम लोग कर रहे हैं उसको ग्राफिकल पोर्शन से जरूर मिलाने की कोशिश करो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा है, तो 2n पाई का मतलब तो सिंपली ये हो गया कि डब रोटेशन कंप्लीट हुआ है, या तो एक रोटेशन हुआ हो, या जीरो रोटेशन हुआ हो, दो हो, तीन हो, वो इंटीजर क्या है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 2 पाई का मल्टीपल है, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट हुआ है। अब क्या है कि रोटेशन जब कंप्लीट हो रहा है उसके बाद तुम प्लस अल्फा करो या माइनस अल्फा करो, सेम मिल रहा है। क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि प्लस अल्फा करने पे तुम जहां पे जाओगे और माइनस अल्फा करने पे जहां पे जाओगे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, एक फोर्थ हो जाएगा, और दोनों ही में कॉस पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए सेम वैल्यू मिलेगी। इन केस मान लो कि अल्फा की वैल्यू ऐसी है कि तुम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, मतलब मान लो 3 पाई/4 है, तो माइनस अल्फा जब करोगे सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हो, तो माइनस अल्फा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, दोनों माइनस माइनस में होता है। तो इसी तरीके से तुम उसको लिंक कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. गुड। तो इसमें बस यही करना है, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हें हर चीज को लिंक करके याद रखना, समझना है, उससे काफी हेल्प मिलेगी और कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये तुम जैसे भी खाली टाइम पे बैठे हो तो यही सोचो कि ग्राफ को उसके रिजल्ट से कैसे मैच कर सकते हैं, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के बारे में जैसे हमने पढ़ा है उसको किस तरीके से उसको मैच कर सकते हैं। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। जितना ज्यादा तुम इसको खुद से समझने की, इंटरलिंक करने की कोशिश करोगे, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और उतना ज्यादा तुम एप्लीकेशन जब करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। Yes, sir. एवरीवन? या ऋषि, गुड। सो यू आर क्वाइट रिस्पॉन्डिंग बट अदर्स आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। आयुषी, आराध्या, आशीष, देवांश, कौस्तुभ, कहाँ हो तुम लोग? जिंदा हो? कहाँ हो? यस सर। ओके देवांश, ठीक है। ओके आराध्या। आशीष, ओके। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का ये डिराइव करने की कोशिश करो तो क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन? हो जाएगा तो बता देना।
मैं 5 मिनट में आता हूँ, या 5 मिनट से कम में आ जाऊंगा, 2 मिनट में आ जाऊंगा। ओके, तो कहाँ तक पहुंची गाड़ी? Sir, is it n pi plus alpha? या करेक्ट, वेरी गुड। So when we try to find out the general solution of tan theta is equal to tan alpha, तो हम कैसे करेंगे? tan को हम लिख सकते हैं sin by cos, sin theta by cos theta is tan theta, and sin alpha by cos alpha is tan alpha। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो sin theta cos alpha is equal to cos theta sin alpha। उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं? sin theta cos alpha minus cos theta sin alpha इक्वल टू 0। ये किसकी आइडेंटिटी है, कोई बता सकता है? sin A cos B minus cos A sin B। Do you remember which identity is this? Sin of theta minus alpha, इसकी आइडेंटिटी है, and this is equal to 0। इससे थीटा माइनस अल्फा क्या देगा? n पाई। ये क्यों देगा? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था sin x अगर 0 होता है, x क्या होता है? n पाई होता है, n पाई पे 0 होता है। तो इससे थीटा क्या मिल जाएगा? n पाई प्लस अल्फा, Yes, sir. n belonging to integer। Let us discuss few questions। tan x is equal to minus 1 by root 3 दिया हुआ है, ठीक है। Now if I ask you कि इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होगा और जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। अच्छा, ये जो 3 का भी हमने जनरल सॉल्यूशन पढ़ा है, वही कॉसेक का जब अप्लाई करना होगा ना, जैसे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक अल्फा होगा, तो ये इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, क्योंकि दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा थीटा जो साइन का होता है जनरल सॉल्यूशन। तो कॉसेक का हम अलग से याद नहीं करते, या सेक का भी अलग से याद नहीं करते, सेक कॉस
का रेसिप्रोकल होता है, तो जो कॉस का जनरल सॉल्यूशन है वही सेक का भी होगा, और जो टैन का है वही कॉट का भी होगा, इसलिए इसको अलग से नहीं करते। ये अभी एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिया है, ये करो तो। Ayushi, Aradhya, Arushi, Ashish, Kaustubh, and who has left this time? दिमाग से निकल रहा है मेरे, और किसको होना चाहिए था अभी? देवांश, ओके, देवांश has left. देखो, प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और बेस्ट तरीका प्रैक्टिस का यही है कि पहले तुम्हें ओके 11 पाई बाई 6 आरुषि सेइंग द प्रिंसिपल वैल्यू. Harushi, no, that is not the principal value. That is actually, ये तो नहीं होगा. 11 पाई बाई 6 प्रिंसिपल वैल्यू तो इसलिए नहीं, क्योंकि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं है. माइनस पाई बाई 2 के बीच में ही प्रिंसिपल वैल्यू होती है टैन की, जैसे मैंने बताया था. प्रिंसिपल वैल्यूज जो हैं, जो एस लगा हुआ है प्लूरल, उसमें पॉसिबिलिटी है कि 11 पाई बाई 6 एक प्रिंसिपल वैल्यू हो, वन ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यूज, बिकॉज इट इज 2 पाई माइनस पाई बाई 6. यस, तो प्रिंसिपल वैल्यूज में से एक प्रिंसिपल वैल्यू 11 पाई बाई 6 हो सकती है, बट इट इज नॉट द प्रिंसिपल वैल्यू, इट इज नॉट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. सो व्हाट हैपेंस कि अगर तुम -1/√3 ले रही हो, जनरल इज n पाई माइनस पाई बाई 6. दैट इज फाइन, n पाई माइनस पाई बाई 6 सही है. तो इसका जो है
प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा ना वो कहाँ से कहाँ होता है, -π/2 से लेके π/2। तो tan का ग्राफ अगर तुम देखो तो -π/2 से लेके π/2 में ऐसा होता है। और -1/√3 की अगर हम बात करें तो वो होता है π/6 पे, -π/6 पे। π/6 पे तो +1/√3 होता है, -π/6 पे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो होगा x इज इक्वल टू -π/6। और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की बात अगर करेंगे तो दैट इज एक्चुअली ईदर इन सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकेंड या फोर्थ में ही निगेटिव हो सकता है। तो x इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में जब लेंगे तो हम क्या लेंगे, पाई प्लस π/6, दैट विल बी 7π/6। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब लेंगे तो 2π - π/6, दैट इज 11π/6। हाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस इज पाई प्लस π/6, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये हो गया, सॉरी पाई माइनस π/6 होना चाहिए ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है। तो दिस शुड बी पाई माइनस π/6 which will be 5π/6। and this is 2π - π/6 which is in फोर्थ क्वाड्रेंट। तो tan अगर निगेटिव हो रहा है तो सेकेंड या फोर्थ में होगा, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट, किसी का मैसेज आया, एक मिनट देखता हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बाय आरुषि 5π/6 n5, हाँ करेक्ट है। और जनरल सॉल्यूशन n5 - 6, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन हम लेंगे तो वो होगा n π प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू क्या है, -π/6। दिस इज योर अल्फा, दिस इज -π/6। n π - π/6, दैट विल बी द जनरल सॉल्यूशन। हाँ हाँ सही, आरुषि, प्रिंसिपल सॉल्यूशन विल बी -π/6। यू आर राइटिंग π/6। यस सर, हाँ सर अब सही हो गया, वो उस टाइम पे एक मिस्टेक कर दी थी इसलिए उल्टा हो गया था। ओके। So you can try the questions from this particular exercise as well as miscellaneous exercise. So this exercise is exercise 3.4, जिससे पहले का नहीं किया, पहले वो भी कर लो और ये वाला भी कर लो। और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले ऑलवेज डू द सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सॉल्व्ड एग्जांपल्स को अपने से करने की कोशिश करो, नहीं समझ में आए तब उसके बाद जो है वो उससे करो। ओके सर। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स आर नेसेसरी और उसके बाद एक्सरसाइज करना है तुम्हें। 3.4 एक्सरसाइज करने के बाद
फिर मिसलेनियस भी हो जाएगी। तो इफ यू टॉक अबाउट थ्योरी, एक छोटा सा रह गया, थ्योरी कंप्लीट हो गई है, एक छोटी सी थ्योरी ये रह गई है कि इफ वी हैव साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, इसको भी डिराइव कर सकते हैं, चाहो तो कर लेना, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। अगर इस तरह का कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो तीनों का जनरल सॉल्यूशन एक ही होता है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अगर स्क्वायरिंग ओके की सर। हुई है तो देयर इज नो इश्यू इन प्रूविंग दिस, चाहो तो प्रूव कर लेना। So we conclude today's class. We'll meet after day after tomorrow, and I will mostly discuss question in day after tomorrow. So make sure you have completed all the exercise, learned all the theory, graphs, formulae, everything, and then we will discuss questions day after tomorrow. ओके सर। Thank you everyone.